Assalamu alaikum. So this is my introduction. I am Chairman Imaging Services Indus Hospital Networks. Indus has a big network across the country. We have right now 14 hospitals running across the country, including Muzaffargarh, Multan, Badin, Karachi, and there are associated family clinics more than 40 across the country from Sindh to Azad Kashmir. So I am chairing the imaging department that includes MRI, CT, intervention radiology, and we have two intervention radiology suites. The first one in the Karachi, and the other one recently started in Muzaffargarh. And there are two big hospitals under construction, the 1500 bedded hospital in Karachi and 600 bedded hospital in Lahore. And there is no cash counter in the whole system. So all healthcare facility is free of cost. Definitely it's based on the charity, and thanks to all Pakistanis and our nation and international donors. I was previously heading the Department of Radiology in Ziauddin University Hospitals from 2014 to 2019. And I am intervention radiologist, and I used to do imaging as well. So there is no disclaimer. So as we all know, you are medical grads, doctors and physicians. You know better than me that stroke is actually a clinical symptom. It's not diagnosed on imaging. As we saw in the previous video, the lady called the doctor and she said, "I think my husband has got a stroke." This should be the level of understanding and awareness among the people. This should be the target. Ravi, this should be the target. This is the problem. हमें पता ही नहीं है स्ट्रोक लकवा हो गया है, शायद डॉक्टर साहब हकीम के पास ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन द अवेयरनेस लेवल इज़ सो मच लो. दैट्स वाई वी आर ऑलमोस्ट 24 years बिहाइंड द वर्ल्ड. ये सारी चीज़ें मौजूद हैं. रवि ने बहुत अच्छी बात की, बड़ी पसंद आई मुझे, और ये सब चीज़ें डुएबल है, लेकिन अवेयरनेस वो पहुँचेगा कैसे 1 घंटे के अंदर. CT स्कैन भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडिकली अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री इन बिग हॉस्पिटल सेटअप्स. देयर इज़ नो इशू ऑफ CT स्कैन. व्हाट्सएप है, टेली रेडियोलॉजी इज़ अवेलेबल, एक्सपर्टीज़ आर देयर. बट पेशेंट कैसे पहुँचे, उसको पता तो हो कि मुझे पहुँचना है, उसकी फैमिली को पता हो. दिस इज़ द इशू, एंड वी मस्ट एनकरेज पीपल. वी मस्ट ऑर्गेनाइज बिग सोशल कैंपेन्स. जैसे ब्रेस्ट कैंसर की कैंपेन चली है, कितनी ज़बरदस्त मर्तबा. तो इस तरह स्ट्रोक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से कम तो नहीं है ना, कम से कम, बल्कि बहुत ही इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत हैवी हैं. तो एज ए डॉक्टर्स कम्युनिटी जो अवेयरनेस है उसके ऊपर काम करने की पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी नो दैट 75% of the stroke patient has non-hemorrhagic infarct, so it can be treated. And hemorrhagic infarcts अगर हैं तो उसके अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, हमें पता है. So the basic pathophysiology is very simple. It's loss of blood supply. Very simple. Blood नहीं जा रहा वहाँ पे. So what happens? Number 1, जो सोडियम पोटेशियम पम्प हैं, they lost their function. So there is lot of potassium coming inside the cell, and along with the sodium there is lot of influx of the water within cell. तो होता क्या है, साइटोटॉक्सिक एडिमा हो जाता है. ओके, द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग सेगमेंट ऑफ द ब्रेन इज ग्रे मैटर. So because the gray matter is very metabolically active than white matter, so it got infarct first. जो changes आती हैं वो पहले आ जाती हैं ग्रे मैटर में. Then calcium pump dysfunctioning. जब calcium pump dysfunctioning होती है तो it results in damage of the intracellular organelle, especially the mitochondria. So the normal functioning of the cell is degraded और progression होनी शुरू हो जाती है. So this results in inflammation, necrosis and apoptosis. So this is the second stage. And the third stage is loss of blood-brain barrier or destruction of blood-brain barrier. This results in actually vasogenic edema. So first is cytotoxic edema, then inflammation, then
वेजोजेनिक एडिमा। ये तीनों स्टेप्स जो है वो टाइम के साथ आगे जा रहे होते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक। अब हमें क्या करना है, हमें वो क्लॉट निकालना है, वेदर आईवी थ्रोम्बोलिसिस से और मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस से। आईवी थ्रोम्बोलिसिस इज़ द ओनली, मेरे नज़दीक इज़ द ओनली एंड द बेस्ट सोल्यूशन in our setup. There is no room till now for mechanical thrombectomy. Why? जो सॉलिटेयर की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज आई एम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हम जब भी बात करते हैं इट इज़ सो मच एक्सपेंसिव कि लोगों के घर बिक जाएंगे, इतना महंगा वो ट्रीटमेंट चला जाता है। तो इफ़ वी वांट टू ट्रीट आवर स्ट्रोक पेशेंट वी हैव टू अवेयर देम। अवामी सतह पे लोगों को बोलना है भाई 2 घंटे में पहुँचो। शहर में या अक्रॉस द कंट्री मुल्क में पता होना चाहिए कि फ़लाँ सेंटर पे स्ट्रोक्स डील हो रहा है, वहाँ पे पहुँच जाओ। जैसे हार्ट अटैक का बड़ा अच्छा बात की ना कि हार्ट अटैक का पता है कि भाई फ़लाँ जगह जाना है, तो हमें ये पता हो कि फ़लाँ ये हॉस्पिटल में 6 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं पूरे कराची में या पूरे सिंध में 10 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो आपका स्ट्रोक ट्रीटमेंट विद इन टाइम पीरियड, वो 3 घंटे के अंदर पहुँचना है, 3 की भी नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर कोशिश करके पहुँचनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट, द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन इन पाकिस्तान। हमारी गरीब नेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इज़ आईवी थ्रोम्बोलिसिस। Mechanical thrombectomy devices are not available right now. If they are available, they are so much expensive, a poor patient can't afford. Simple as that. और एक्सपर्टीज़ का मसला तो दूसरे नंबर पर है। न्यूरो इंटरवेंशन हमारे यहाँ सिर्फ 2 जगह पे होती है क्रॉस द कंट्री, सिर्फ 2 जगह पे। तो हमने अपने लोगों को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है। तो इट इज़ अ मैराथन एक्चुअली, जो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली ये फ़ायदा होगा। तो हमें इस क्लॉट को निकालना है, दिस इज़ द टारगेट। सो दीज आर द फेसेस ऑफ स्ट्रोक। वी नो द हाइपर एक्यूट, एक्यूट, देन सब एक्यूट, देन क्रॉनिक। और उसमें तमाम के तमाम में there are some findings you can pick on CT scan or MRI. Agreed upon कि CT scan is enough for any stroke patient. CT scan हम करवाते क्यों हैं? मैं जब भी वहाँ पे हमारी ER से भी होता है, इंडस में तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और न्यूरो सर्जरी उस तरह इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन जब भी पूछते हैं सर वो डायग्नोस करना है। CT scan is not for diagnosis of stroke. Stroke is clinical diagnosis. आप सिर्फ वही जो अभी डॉक्टर साहब ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन बताएं, आपको गिनवाएं, जस्ट आप वो करें, आपको पता चल जाएगा स्ट्रोक का पेशेंट है। इवन घर वाले कह रहे हैं इसको फालिज हुआ है, तो उसको आपने डायग्नोस तो नहीं करना। यू हैव टू रूल आउट समथिंग, एंड व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ एक्चुअली नंबर 1? hemorrhage. Simple is that. You just want to have a CT scan to rule out hemorrhage, just not for diagnosis of stroke. ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखें। Don't waste your time on MRI now because of the two reasons. Number 1, it is not readily available, चंद जगहों पर है। Number 2, हर जगह पर DWI imaging अवेलेबल नहीं है। Diffusion weighted imaging is mandatory for hyperacute and acute ischemic infarctions, and it is this DWI imaging is only available in 1.5 Tesla imagers. यानी MRI की मशीन जिसकी पावर, मैग्नेट पावर 1.5 होगी, सिर्फ उसमें DWI होगा। तो अगर आपने मार्केट से करा भी लिया तो उसके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, एंड इट वोंट हेल्प यू कि आपने करा भी लिया और उसमें तो DWI नहीं हुआ। तो एक बात तो हो गई कि अवेलेबल हर जगह नहीं है। नंबर 2, अगर अवेलेबल है तो उसमें 1.5 टेस्ला इमेजर के ऊपर ही आपको DWI इमेजिंग मिलेगी, विच इज़ मैंडेटरी फॉर हाइपर एक्यूट और एक्यूट इस्केमिक इन्फार्क्शन। नंबर 3, द कॉस्ट। तो आप क्यों पेशेंट के जो जितने पैसे 1 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 50,000 का तो हमारा ही होना शुरू हो गया, 45,000 40,000 का। तो आप डोंट वेस्ट योर मनी, योर टाइम, जस्ट हैव अ प्लेन CT स्कैन। कंट्रास्ट की भी ज़रूरत नहीं है। रूल आउट ब्लीड एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट आफ्टर सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे रवि ने भी आपको बताया। सो यू कैन सी सम साइंस लाइक वी वुड सी ऑन द इमेजिंग, आगे आएंगी जैसे जैसे। तो अर्ली साइंस ऑफ CT स्कैन्स में कुछ साइंस होते हैं, अभी देख लेते हैं, और DWI के ऊपर डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है, वो भी देख लेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई थ्रोम्बस इन द वेसल, ये भी अर्ली आप पिक कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर एक्यूट स्टेज होता है, साइटोटॉक्सिक एडिमा हो गया है। यहाँ से इस 12 to 24 आवर्स से CT स्कैन और MRI इज इक्वली गुड टू डायग्नोज, टू डिपिक्ट द होल पिक्चर ऑफ द स्ट्रोक। हेमरेजिक नहीं है, वेज शेप है, कितना वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है, वगैरह वगैरह।
लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर इसके साथ कंट्रास्ट ऐड हो जाए तो आप परफ्यूजन इमेजिंग कर सकते हैं। एंड परफ्यूजन इमेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमीज। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन विच इज़ एट रिस्क टू डेवलप फर्दर इस्कीमिया, दैट इज़ कॉल्ड पेनम्ब्रा। तो यहाँ पे आप अगर हाइपर एक्यूट है तो सिटीज ओके, लेकिन अगर आप उस पीरियड को लॉस कर चुके हैं तो अब आप कंट्रास्ट ऐड कर लें ताकि आपको पेनम्ब्रा वगैरह का पता चल जाए और फर्दर आप स्ट्रोक की जो आउटकम्स हैं उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाए। सब एक्यूट फेस है और उसके बाद क्रॉनिक, ये सब आपके इल्म में है, मैं इसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा। इन सब में एमआरआई और सिटी दोनों का रोल बनता है, अभी हम देख लेंगे। सो जस्ट what is the approach in imaging approach for stroke? Remember 4 P's. Number 1 is parenchyma. Assess early the signs of acute stroke, rule out hemorrhage. This is the target. ठीक है। Number 2, see the extracranial vascularity. Like वहाँ पे हो सकता है कोई बड़ा थ्रोम्बस हो in the internal carotid artery, extracranial segment of the internal carotid artery. You have to see that segment और ये ज़्यादा treatable होगा। जितना हार्ट की तरफ जाएंगे वैस्कुलर डिजीज़ आर मोर ट्रीटेबल, जितना डिस्टल जाएंगे, एज अ रूल बता रहा हूँ, याद रख लें, चाहे पेरिफेरल लिम्ब इस्कीमिया हो, सेंट्रल चाहे वो ब्रेन इस्कीमिया हो, जितना डिस्टल डिसलॉजमेंट होती चली जा रही है सेगमेंट के अंदर उतना डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। जितना प्रॉक्सिमल हार्ट की तरफ आ रहे हैं उतना ईजी टू ट्रीट है और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं। एंड आर्ट्रेक्टमी आप कर सकते हैं, आप जो है स्टेंटिंग कर सकते हैं अगर वो सब एक्यूट टू क्रॉनिक फेज में चले गया है। कोलैटरल सर्कुलेशन से कुदरत खुद ही उसको कंपनसेट करना शुरू कर देती है, वगैरह वगैरह। देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। परफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द लेवल ऑफ परफ्यूजन इन द अफेक्टेड एरिया एंड द सराउंडिंग एरिया, ये भी हम देख लेते। और पेनम्ब्रा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनम्ब्रा? ये दिस इज़ द पेनम्ब्रा, एंटम्ब्रा एंड अम्ब्रा। Penumbra is actually an invisible impression of an object. आपको पता तो चल रहा है कि वहाँ पे कोई चीज़ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड पेनम्ब्रा। ठीक है, वो चीज़ वहाँ मौजूद ज़रूर होगी लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट इनविजिबल पार्ट। ठीक है, तो जो इनविजिबल है दैट इज़ पेनम्ब्रा। ठीक है, तो पेनम्ब्रा इन ब्रेन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एरिया एट रिस्क। एक तो वो एरिया हो गया जहाँ पे ब्लड सप्लाई लॉस्ट हो गई है, लेकिन एक उसका सराउंडिंग एरिया है जो एट रिस्क है एंड इट विल डेवलप बाय द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर infarct. So this penumbra region is potentially salvageable with early recanalization. अगर हम उस ब्लड क्लॉट को वहाँ से रिमूव कर दें वेदर बाय TPA और थ्रोम्बेक्टमी, तो हम उस पेनम्ब्रा वाले को तो डेफिनेटली बचा सकते हैं और पेशेंट का फर्दर जो उसका मोटर फंक्शन है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इमेजिंग मोडेलिटीज़ अवेलेबल फॉर इमेजिंग इन द स्ट्रोक आर नंबर 1 अनएनहांस्ड सिटी स्कैन, सिटी एंजियोग्राफी, सिटी परफ्यूजन इमेजिंग। ये हर जगह पे नहीं होती लेकिन अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। कन्वेंशनल MRI इंक्लूडिंग DWI सीक्वेंस, MR एंजियोग्राफी, डिफ्यूजन वेटेड MR इमेजिंग, परफ्यूजन वेटेड MR इमेजिंग, ये सारे के सारे MR इमेजिंग 1.5 टेस्ला इमेजिंग के ऊपर ही बेहतर होती हैं। इससे लो टेस्ला इज़ द पावर ऑफ मैग्नेट ऑफ MRI। तो जितना हायर साइड पे हम जाते हैं उतना बेहतर इमेजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी जहन में रखें कि मार्केट में लगी हुई हर मशीन पे स्ट्रोक इमेजिंग होना मुमकिन नहीं है MRI के अंदर, लेकिन सिटी स्कैन कहीं से भी करा लें उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। सो व्हाट इज़ द जस्ट टू लर्न व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MRI और सिटी स्कैन, ये मालिक भाई ने स्पेशली कहा था, ये ज़रूर बता दें कैंडिडेट्स को और हमारे PGs को। ये बड़ा मुश्किल होता है कि MR और सिटी में फ़र्क ही क्या है, क्यों दोनों करवाए जाते हैं। दोनों मोडेलिटीज़ हैं तो सिटी करवाते रहें, फिर MR की क्या ज़रूरत है। MR अगर अच्छा है, महंगा है, तो इतनी अच्छी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है तो फिर सिटी क्यों कराते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कोई है आइडिया? टाइम तो आपने बाय कर लिया, चलें सिटी स्कैन करा के, सस्ता भी हो गया, अवेलेबल भी हो गया, ये 3 बातें तो सिटी की फेवर में जा रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिसकी वजह से फिर MRI कराना पड़ता है। जी हाँ, बोले कोई गलती बोलेंगे, अगर गलत भी बोलेंगे तो कोई मुकाबला नहीं है, कोई बात नहीं। बोनी स्ट्रक्चर्स के लिए सिटी स्कैन
ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, मसल्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, कॉर्टिको-मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट विजरा के लिए एमआर इज़ बेटर देन सिटी स्कैन, ठीक है। सिटी स्कैन के अंदर रेडिएशन इश्यूज़ हैं, एमआर के अंदर रेडिएशन इश्यूज़ नहीं हैं। सिटी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एमआर टाइम कंज्यूमिंग है। एवरेज टाइम जो है वो 45 to 1 आवर्स लगता है। नंबर 2, हर सिटी स्कैन की मशीन्स आर मोर स्टैंडर्डाइज्ड इन आवर सेटअप, बल्कि वर्ल्ड वाइड, देन एमआरआई। एमआरआई के अंदर वेरिएशन बहुत है, ठीक है। तो आपको नहीं पता, आप जिस सेंटर पे, या तो आप उसको पता करके रखें कि जिस सेंटर पे भेज रहे हैं वहाँ पे एडिक्वेट एमआरआई मशीन है आपके काम की कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता करके, इस तरह ओपन आप ना छोड़ दें पेशेंट को, वो कहीं से भी करा के ले आएगा तो यूजलेस हो जाएगा उसका। सो the visible difference between CT scan and MRI is that in CT scan bone is white and in MRI the bone is black. So this is the basic difference, ठीक है। The more differential image in which is differentiating between gray matter and white matter is MRI. Whereas CT scan can also differentiate between gray matter and white matter, but the level of differentiation is much better in MRI. CT scan में एक ही स्कैन होता है, ये सिंपल प्लेन या कंट्रास्ट, जबकि MRI में सीक्वेंसेस होते हैं, T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज, फ्लेयर इमेज, ग्रेडियंट इको, कंट्रास्ट इमेज, DWI, परफ्यूजन इमेजिंग, ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग, ये कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं, उन सबको मिला के देखना पड़ता है जब आपको डिटेल स्टडी आती है। एक और इमेजिंग अब आ गई है, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, जो सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे न्यूरॉन्स ट्रैक हो जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ सर्जरी इन ट्यूमर्स और इन केसेस ऑफ लार्ज हेमरेजेस, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है किन फाइबर्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग भी 1.5 इवन 3 टेस्ला इमेजिंग पे ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। जब भी आपने रूल आउट करना हो ब्लीड को तो सिटी स्कैन, अगर आपने फर्दर डायग्नोसिस और पेशेंट डिले हो चुका है, आपने आउटकम्स पे बात करनी है, आपने प्रोग्नोसिस पे बात करनी है, तो फिर एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। सो व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ सिटी स्कैन, अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक ऑन सिटी स्कैन? लॉस ऑफ इंसुलर रिबन, ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यानी जो हमारे बेजल गैंग्लिया होते हैं, लॉस ऑफ ग्रे वाइट मैटर डिफ्रेंशिएशन एंड सल्कल इफेसमेंट। बड़ी सिंपल सी है, इसके लिए सिर्फ आपको अच्छी आई चाहिए कि जो इन डिफरेंसेस को राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिफ्रेंशिएट कर सकें। इनडायरेक्ट साइंस आर हाइपरडेंस मिडिल आर्टरी साइन, ठीक है, और MCA डॉट साइन। ये दोनों, ये सारी चीज़ें सिटी स्कैन पे नज़र आती हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट इमेज यू कैन आइडेंटिफाई अ हाइपरडेंसिटी इन लेफ्ट सल्वियन फिशर, ठीक है, दिस इज डेफिनेटली हायर देन दिस मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, सो दिस इज डेंस आर्टरी साइन। Here is MCA dot sign, only a dot is present, ठीक है, just like this dot, but the density of this dot is definitely higher than this small dot. This is ICA, this is MCA. Here is obscuration of the lentiform nucleus. Here you can identify the anterior and posterior limb of internal capsule and head of caudate and the basal ganglia. Whereas here all details are lost. So this is called obscuration of lentiform nucleus sign. And here you can compare the subinsular cortex to the contralateral subinsular cortex. Here is some blurring and hypodensity which is not comparable and parallel to the contralateral side. So this is called insular ribbon sign. So all these signs should be picked earlier, and if there is no bleed then you can proceed, and the further जितने भी आपने काम करना है वो कर लिए हैं सारे clinical assessment, तो आप you can go for IV TPA. So there are some important facts regarding CT scan. Windowing is very important. विंडोइंग जो है वो सिर्फ कंसोल ऑफ सिटी स्कैन पर या फिर जो हमारा इमेजिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर हो सकती है। आप अगर इस सिटी स्कैन को देखेंगे हार्डली टू आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटी, बट विद द सेम सिटी इफ वी चेंज द विंडो we can pick this hypodensity which is asymmetrically presented in the posterior limb of the right internal capsule, and this is definitely an infarct. So windowing is important. यानी विंडो का मतलब ये होता है कि कितना आप इसका कंट्रास्ट बढ़ा रहे हैं इमेज का।
ये सिटी कंसोल पे ही मुमकिन होता है। तो अगर आपकी अच्छी लाइजनिंग है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से और रेडियोलॉजिस्ट से, तो उससे कहें कि ज़रा विंडोइंग अच्छी करके देख लें, रूल आउट कर लें। ब्लीड तो रूल आउट हो गया, लेकिन इन्फार्क्ट का भी एरिया कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो विंडोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा विंडोइंग का रिवाज नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्बर्टा स्कोर, इसको हम छोड़ देते हैं। ये हम स्कोर करते हैं M1 2 3 4, पुराना ज़रा सा मेथड है। MCA की टेरिटरी के अंदर 1 to 8 हम इसको स्कोर करते थे, दोनों तरफ कंपेयर करते थे वगैरह। ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं टाइम कंस्टेंट्स की वजह से। सिटी एंजियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें टारगेट करना होता है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स को और मेजर वेसल्स ACA, PCA और MCA। आमतौर पे MCA के इन्फार्क्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वेयर इज़ द थ्रोम्बस एंड व्हाट इज़ द लोड ऑफ थ्रोम्बस, और साथ में हमें परफ्यूजन इमेजिंग भी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, here you can identify a dense artery which is dense MCA sign for a stroke. Definitely some hypodensity is present in the left cerebral hemisphere involving the left frontal and the temporal region. This is definitely an area, infarcted area, and on CT angiograph you cannot identify the M1 and 2 segment of the left MCA, and this is consistent with the stroke. यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे MCA है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। सिटी एंजियोग्राफी इज इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द जिसको हम कहते हैं परफ्यूजन इमेजिंग, चाहे वो MRI की हो चाहे सिटी की, उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया जब क्लॉट हुआ है ना उसके अंदर, वेसल के अंदर, तो उसमें 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो उसका फ्लो रुक जाएगा, ब्लड फ्लो, इसको कहते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, फ्लो भी रुक जाएगा। सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम, ये दोनों कम हो जाएंगे। और एक होता है मीन ट्रांजिट टाइम, यानी ब्लड जब एंटर हुआ इंट्राक्रेनियल तो कितनी देर में वो वेन तक पहुंचा है। तो ये 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। मीन ट्रांजिट टाइम, यानी ब्लड जब एंटर हुआ पैरेन्काइमा में, वहाँ से जब तक वो वेन में पहुंचा है, ठीक है, वेन्यूल से आर्टीरियोल्स, वेन्यूल से होता हुआ वेन में पहुंचा है, मीन ट्रांजिट टाइम। नंबर 2, व्हाट इज़ द फ्लो रेट, कि पर मिनट कितना ब्लड जा रहा था। नंबर 3, वॉल्यूम, जितना जा रहा था वो कितना कम हुआ है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। 3 वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअल वैल्यूज आर दीज। नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम इज 4 to 5 ml पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम ब्रेन पैरेन्काइमा में 4 से 5 ml ब्लड जाता है यूजुअली हर मिनट के अंदर। और नॉर्मल जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो 50 to 60 ml पर 100 ग्राम पर मिनट है। तो दिस इज़ द वॉल्यूम एंड दिस इज़ द फ्लो रेट। एंड द थर्ड वन इज़ मीन ट्रांजिट टाइम, कितनी देर में आर्टरी से ब्लड निकल के वेन्स में जा रहा है। सो दीज आर सम कैलकुलेशंस के हम जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको बहुत ज़रूरी नहीं है याद रखना। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मीन ट्रांजिट टाइम। ये कैलकुलेशन होती है जो खुद सिटी हमें करके देता है। तो इन परफ्यूजन फीचर्स ऑफ पेनम्बरा, अब एक हो गया इन्फाक्टेड एरिया जिसके अंदर ब्लड सप्लाई लॉस हुई है, जिसमें इन्फाक्ट इस्टेब्लिश हो गया है और उसके अंदर अब फर्दर ब्लड नहीं जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इन्फाक्टेड एरिया। और एक सराउंडिंग एरिया है जो एट रिस्क है, डेट इज कॉल्ड पेनम्बरा। तो इन पेनम्बरा द मीन ट्रांजिट टाइम विल इंक्रीज। अब रेजिस्टेंस मिल रही है फ्लो को, तो मीन ट्रांजिट टाइम इंक्रीज हो गया, अब स्लो 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 ब्लड आगे जा रहा है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो, डेफिनेटली जब स्लो ब्लड जा रहा है तो फ्लो कम हो गया उसका, ठीक है, वेसल्स के अंदर। और जो सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम है वो स्टैटिक है अभी, यानी ब्लड वॉल्यूम जो है वो मुनासिब मकदार में अभी भी जा रहा है पेनम्बरा वाले, यानी द एरिया विच इज़ एट रिस्क, उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ ब्लड वॉल्यूम जा रहा है, फ्लो कम हो गया है, मीन ट्रांजिट टाइम भी कम हो गया है। लेकिन जो इन्फाक्टेड एरिया है उसमें ये सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाएंगी, ना तो ब्लड वॉल्यूम वहाँ जा रहा है, ना ही वहाँ पे फ्लो अच्छा है, और मीन ट्रांजिट टाइम डेफिनेटली बहुत स्लो हो गया, यानी अब ब्लड जा ही नहीं पा रहा है। सो डेफिनेटली दिस एरिया इज इन्फाक्टेड एरिया एंड दिस एरिया इज पेनम्बरा विच कैन बी ट्रीटेड फर्दर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कैन होता है जिसको हम परफ्यूजन स्कैन कहते हैं। सो दिस इज़ द परफ्यूजन इमेजिंग, ये सिटी स्कैन की है। MR की इमेजिंग भी इसी तरह की होती है, ठीक है, यानी इसकी जो रंगों की जो कम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो रेड इज रिप्रेजेंटिंग अ वेस्ट शेप एबनॉर्मल डेंसिटी एरिया विच हैज़ लो मीन ट्रांजिट टाइम, ठीक है, ये पूरा एरिया है। तो जहाँ पे मीन ट्रांजिट टाइम कम होगा दिस इज पेनम्बरा, ठीक है। इसी एरिया में सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी कम हुआ है,
लेकिन अगर हम सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम देखते हैं तो वो सिर्फ इस जगह के ऊपर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन हो गया, इस जगह के ऊपर, ठीक है। सो हम जब इन इमेजेस में से इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप मैनुअल करें चाहे आप सॉफ्टवेयर से करें, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ डेड टिश्यू एंड दिस वेज शेप लार्ज एरिया इज़ एट रिस्क फॉर फर्दर इस्कीमिया, ठीक है, कि वहाँ पे अब फर्दर इन्फाक्ट हो, इस्कीमिया हो गया, अब इन्फाक्ट होना शुरू हो गया, अब इन्फाक्ट हो जाएगा अगर आपने इसको इंटरवीन ना किया, वेदर टीपीए से या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनम्ब्रा. Penumbra is very important. We have to identify the area of brain which is at risk. So perfusion imaging can depict that area very well. सिटी के अंदर कुछ पिटफॉल्स हैं और डिफरेंट इसकी यानी इंटरप्रिटेशंस में भी पिटफॉल्स हो सकते हैं। ये रेडियोलॉजिस्ट का काम है कि वो इन सारे पिटफॉल्स को देखे। एक उसमें है मुख्तलिफ, जैसे वेस्कुलर स्टेनोसिस पहले कहीं कैरोटिड में पड़ा हुआ है, या एंगुलेशन सही नहीं है सिटी स्कैन का, या वाइट मैटर चेंजेस हैं, पहले से स्कीमिया था, ओल्ड स्कीमिया वगैरह, सीजर्स हैं जिसके अंदर एक तरफ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वक्ती तौर पर, ये सारे इसके अंदर मिमिकर्स हैं। सो कम टू द एमआरआई, यहाँ तक हम सिटी था, एमआरआई को जल्दी से कवर कर लेते हैं। एमआरआई के अंदर दो तरह की इमेजिंग होती है, एक स्पिन एको सीक्वेंसेस कहलाते हैं, यानी T1 T2 फ्लेयर इमेजेस, इसके ऊपर भी आपको इन्फाक्ट नज़र आ जाता है। लेकिन फॉर हाइपर एक्यूट स्टेज वी नीड टू हैव डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। जब भी हमने अभी पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम पम्प्स जब भी अपनी फंक्शनिंग लॉस करते हैं तो देयर इज़ एडीमा, इंट्रासेलुलर इन्फ्लक्स ऑफ द वाटर। जब इंट्रासेलुलर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर आता है तो उन तमाम सेल्स में जिसमें स्कीमिया हो चुका है, अंदर और बाहर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज स्टॉप्ड। तो ये डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग उन एरियाज़ को पिक करती है जहाँ पर डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन हो गई है, यानी ना तो आप कोई अंदर आ रहा है ना आप कोई बाहर जा रहा है, वो इन्फाक्टेड एरिया है, ठीक है। तो डिफ्यूजन वेटेड इमेज कैन पिक इवन विद इन मिनट्स द स्कीमिया, विद इन मिनट्स 10 to 15 मिनट्स के अंदर भी डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस पकड़ लेती हैं, पिक कर लेती हैं। मशीन अच्छी होनी चाहिए। सो दिस इज, देयर आर डिफरेंट सीक्वेंसेस लाइक T2 वेटेड इमेज, लाइक फ्लेयर फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी एंड द ग्रेडियंट इको. Gradient echo is for to rule out the possible inside minimal bleed or hemorrhagic conversion of the infarction. This is very mandatory. इसको SWI imaging भी कहते हैं। इसका एक सीक्वेंस होता है that rules out bleed. तो हमें ये तीनों सीक्वेंसेस आमतौर पे चाहिए होते हैं, T2, फ्लेयर और ग्रेडियंट इको, और इसके साथ DWI. DWI जो है वो हाइपर एक्यूट के लिए, अगर वो फेज गुजर चुका है तो एक्यूट से लेकर क्रॉनिक तक ये तीनों सीक्वेंस स्ट्रोक को पिक करते चले जाते हैं। तो फॉर हाइपर एक्यूट यू नीड DWI इमेजिंग। जिस तरह सिटी में एंजियोग्राफी हुई थी इसी तरह MR में भी एंजियोग्राफी हो सकती है। यू कैन आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ स्टेनोसिस और थ्रोम्बस। हेयर यू कैन सी अ लॉस ऑफ फ्लो वाइट इन दिस एरिया, सो दिस इज डेफिनेटली एन abnormality. Similarly, there is no flow in the basilar artery, so this could be the cause of infarction. डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि इसके अंदर वो एरिया पिक करता है हमारा जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की अब डिफ्यूजन नहीं हो रही है, ना तो सेल्स में अंदर जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल ना बाहर आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू मैच दिस डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग विद apparent diffusion coefficient. This is another image called ADC. So it's a combination of DWI and ADC, ठीक है। So this is DWI image, a blurred image. ये 40 seconds का सीक्वेंस है, यानी जितनी जल्दी CT हो जाता है उतनी जल्दी ये भी हो जाता है, 40 seconds only. But the details are very blurred. इमेज ब्लर्ड होगी लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ब्लड सी इमेज नज़र आ रही है, कुछ बहुत अच्छी इमेज नज़र नहीं आ रही, लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई ईजली ऑल दोज एरिया विच आर ब्राइट और वाइट देन द कॉन्ट्रालैटरल हेमिस्फीयर. दिस होल एरिया, बायोलैटरल थैलेमाई, ऑक्सीपिटल लोब्स, ठीक है, यहाँ पे आप सब जगह पे मैच कर सकते हैं कॉन्ट्रालैटरल हेमिस्फीयर से। आप इसको करेंगे तो ये पूरा एरिया एक बिग इन्फार्क्ट है, सही है। दिस इज ADC इमेज एंड यू हैव टू कंपेयर DWI विद ADC. This will be infarct only if all these area will appear hypointense or black on ADC,
ठीक है, यानी DWI पे जो भी इमेज नज़र आएगा वो ADC पे लो नज़र आना चाहिए, जब भी ये इन्फाक्ट है। अगर वो ADC पे लो नहीं है तो ये इन्फाक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन इज़ मैंडेटरी, DWI वर्सेस ADC इमेजिंग। मैंने पहले ही बताया DWI इमेजिंग इज़ ओनली पॉसिबल इन 1.5 और 3 टेस्ला MRI, ठीक है। लो टेस्ला पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल। तो मार्केट में कितनी मशीन्स 1.5 की लगी होंगी? चंद हैं मसद, ठीक है ना। तो नहीं ज़्यादा हैं, 4-5 से तो ज़्यादा हैं, लेकिन कम हैं। जितनी लगी हुई हैं वो 0.4 या 0.5 टेस्ला इमेजिंग है। तो आपके वो काम करती हैं सारी मशीनें, इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार हैं, लेकिन आपके इस पर्पस को फिल नहीं कर रही, ठीक है। ये जो आप DWI वाला काम है ये नहीं हो सकता उसके ऊपर। सो यू कैन कंपेयर, जब वेन एवर द इन्फाक्ट इज ओल्ड द कम्बिनेशन इज रिवर्स्ड। नाउ ऑन DWI दिस एरिया इज ब्लैक and on ADC this is white. Previously the infarcted area was bright and on ADC it was black, but after a while 3 to 4 weeks the infarcted area got black and on ADC it appears bright. तो ये रिवर्स हो जाएगा फिर। MRI परफ्यूजन इज सेम एज CT परफ्यूजन, सेम पर्पस है, आपने पेनम्बरा आइडेंटिफाई करना है और इन्फाक्ट एरिया आइडेंटिफाई करना है। सेम, ऑलमोस्ट सेम दोनों इमेजिंग होती है, चाहे आप CT परफ्यूजन करवाएं चाहे MRI। कॉस्ट का फ़र्क है, टाइम का फ़र्क है और अवेलेबिलिटी का फ़र्क है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल हेयर, अ लार्ज एरिया ऑफ डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन आइडेंटिफाइड इन द लेफ्ट MCA। ऑन परफ्यूजन, beside this infarcted area there is a large wedge shaped abnormality as well. This is penumbra, okay. So this large area is penumbra and the central one is infarcted tissue, and here is a big mismatch between this image and this image. So this patient is a patient for thrombectomy. अगर ये mismatch नहीं हो तो ये patient thrombectomy के लिए suitable नहीं है। So there must be a mismatch between diffusion restricted images versus perfusion imaging. यानी यहाँ पेनम्बरा मौजूद है, यहाँ पे भी इसी चीज़ को हमने हाईलाइट किया है कलर्ड करके। दिस इज पेनम्बरा एंड दिस इज इन्फाक्टेड एरिया। सो दिस मिसमैच इज मैंडेटरी फॉर थ्रोम्बेक्टमी। चाहे वो आप मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी पे जाएँ तो ज़्यादा, यानी लेट हो गया है पेशेंट तो आप मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी जा सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। अगेन सेम, CT के ऊपर वैज शेप हाइपोडेंसिटी है, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन आ रही है, और जब हमने परफ्यूजन इमेजिंग की है तो पेनम्बरा नहीं बना, ऑलमोस्ट सेम इमेज नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर थ्रोम्बोलिसिस। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, पेनम्बरा अगर नहीं है तो थ्रोम्बोलिसिस का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। These are different sequences, T2 weighted image, DWI and ADC. By the passage of time, on T2 weighted image, the infarcted area becomes brighter and brighter and brighter. As the time passes, the infarct become more brighter. Whereas on DWI, in hyperacute phase, the infarct is bright, and as the time passes, the infarct becomes less bright and eventually it lost signals. तो ये रिवर्स होता चला जाता है, और ये जब रेडियोलॉजिस्ट का काम है बेसिकली, आप ज़रूरी नहीं आप इस बात को याद रखें, लेकिन ये बड़ा क्लियर डिमार्केशन होती है MR के अंदर। सो CT वर्सेस MRI हम इसके कंपैरिजन देख चुके हैं ऑलरेडी, डिस्कस भी कर चुके हैं। सो दिस इज़ probably the last slide. So if the patient is suspected stroke, if hemorrhage is present, तो न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन चाहिए होगा रवि, ठीक है। इफ़ नो हेमरेज ऑन नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन, या आपने MRI करा लिया चलें और DWI के ऊपर आ रहा है इन्फाक्ट, तो लेस देन 3 आवर्स है तो IV TPA हम देंगे, और कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर TPA। अभी रवि ने डिस्कस किया है बहुत डिटेल्स के साथ। अगर 3 से 6 घंटे हो चुके हैं और हमें परफ्यूजन इमेजिंग के ऊपर पेनम्बरा नहीं मिल रहा, जैसा कि अभी हमने देखा था, तो फिर इंट्रा आर्टीरियल थेरेपी में नॉट बी यूज़फुल, ठीक है। लेकिन अगर पेनम्बरा मिल रहा है तो फिर इंट्राक्रेनियल थ्रोम्बस रिट्रीवल कैन बी अटेम्प्टेड, यानी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आप कर सकते हैं इफ़ अवेलेबल, और पेनम्बरा वाले पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होगा।
तो ये सारी इमेजिंग करने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपने डायग्नोस करना है, बल्कि इनफैक्ट आपको उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिसाइड करने हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मेरे ख्याल में टाइम शॉर्ट हो रहा है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ठीक, थैंक यू।